Hi, welcome back. We are in the capital of Chalukya dynasty, Anhilwad, called is Patan today. And the hotel Grand Riveta Patan is very decent hotel to stay in the Patan. और होटल के ओनर जसू भाई ने दशहरा के त्योहार पे स्पेशली फाफड़ा जलेबी का नाश्ता ऐड किया होटल के ब्रेकफास्ट में. थैंक यू जसू भाई. और हम देखने जा रहे हैं क्वींस स्टेपवेल यानी कि रानी की वाव, राण की वाव. लेकिन ये क्या, पूरा पाटन फाफड़ा से भरा है. कितने ही स्टॉल लगे हैं, जहाँ देखो वहाँ फाफड़ा ही फाफड़ा है. आज तो अहमदाबाद से रानी की वाव तकरीबन 125 किलोमीटर से. वेलकम टू रानी की वाव. लेकिन इस रानी की वाव को हम 2018 से जेब में लेके घूम रहे हैं. शायद 100 रुपीज पे नोट पे ये है रानी की वाव का चित्र. जगदीश गोस्वामी, चलो गोस्वामी साहब. रानी की वाव का संकुल जहाँ है वो एरिया है जमीन का, ग्रीनरी का, टोटली 11.6 एकर्स. वेलकम टू रानी की वाव यानी कि राण की वाव. रानी की वाव बनवाई थी चालुक्य डायनेस्टी के राजा भीमसेन प्रथम, भीमदेव प्रथम की विडो रानी उदयमती ने. ये प्रथम ऐसी वाव है जो कोई लेडी ने बनवाई थी उनके पति की याद में, मेमोरी में. वाव का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1063 में, लेकिन शायद खत्म होने में 20 साल लग गए. लेकिन शायद 13वीं सदी में आए फ्लड के कारण पूरी वाव सिल्ट में दब गई और बाद में 1940 में उसे रीडिस्कवर किया गया और 1980 में ASI ने उसको रिस्टोर किया और बाद में 2014 में उसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. બરાબર. ઓકે. થર્ડ રીઝન એ છે કે એમના હસબન્ડની કીર્તિ અમર અને પ્રેમનું એક પ્રતીક બની રહે, એટલા માટે વાવ અહીંયા બનાવવામાં આવેલી છે. This is the best stepwell among all the stepwells, so it is called Queen's Stepwell, रानी की वाव. स्टेपवेल का आर्किटेक्चर मेरू गुर्जर स्टाइल में है, जो मोढेरा सन टेम्पल और माउंट आबू में एक टेम्पल है उससे काफ़ी मिलता जुलता है. लाइन डायग्राम ऑफ द स्टेपवेल.
આ બંને ઇન્દ્ર મેં કહે ને સાહેબ, હવે ચાલુ રાખો વિડીયો એટલે તમારે પેલું ના લાગે. બંને ઇન્દ્ર છે, એમના હાથનું વજ્ર છે, નીચે હાથી આપણે કહીએ ને પૂર્વા ઇન્દ્ર. આ રામ અવતાર છે, જુઓ ધનુષ્ય બાણ તલવારની ઢાલ બતાવશે રામ અવતાર. એરાઉન્ડ સ્મોલ દશા અવતાર છે. અંદર ના જતા ભાઈ, આ અંગડાયેલી અપ્સરા છે, ઝીલીકેલી સર છે. આ સાધુ મહાત્મા કામનાનો નિષેધ કરે છે, સાધુઓનું જીવન લોકોના ભલા માટે, કામના માટે નહીં. પછી જુઓ વિષ્ણુ ભગવાનનો વામન અવતાર છે સાહેબ. વામન એટલે બટુક, હાથમાં છત્રી છે, અક્ષમાં છે. બલિરાજાને ત્રીજા પગમાં પાતાળમાં મોકલે ને તે આ 20 કન્યા એના પગમાં સાપ બતાવે છે, જોયું સાહેબ. પછી જુઓ આ અપ્સરા બતાવી છે, ઝીલીકેલી સરસ છે, જોયું. આ વરા અવતાર છે, ફેસ પિંગનો છે, ધરતી માતા હાથ ઉપર બેઠેલા છે, વિષ્ણુ ભગવાનનો વરા અવતાર. અને આ પાતાળ લોકનું દ્રશ્ય છે, જોયું. નાગ કન્યા એના માથાની પાસે નાગ, પેલા નાગ દેવતા એમના માથાની પાસે નાગ છે. આ કીર્તિમુખ નજરિયું કહીએ ને, આપણા ઘરની આગળ લગાવી સાહેબ તે નજર બટ્ટુ. આ બધા લક્ષ્મીજી એમના હાથમાં કમર છે. નીચે જુઓ પેલા કુબેર છે, એમનું પેટ થોડું મોટું છે. હવે જુઓ આ બાજુ આવી જાઓ, પેલી 20 કન્યા એના પગની પાસે જો મોર છે, જો તો મોર જેવી બ્યુટીફુલ સુંદર હોય. એના હાથ પાસે સાપ છે, સાપ જેવી ઝેરીલી ઉપર જો 3 ઘોડ છે. ઘોડ હોય ને રાત્રે જુઓ ને રાત્રે શિકાર કરે તો 20 કન્યા પણ રાત્રે શત્રુ રાજાને એવી રીતે મારે કે શત્રુ રાજાને પણ ખબર ના પડે કે એનું મૃત્યુ કઈ રીતે થયું. એનો ઉલ્લેખ ચાણક્ય નીતિમાં કરેલો છે. બરાબર. પેલા વિશ્વામિત્ર તપોભંગ કરી દાઢી ખેંચતી મેનકા અપ્સરા છે. પેલા ઘણા બધા આ છે ને કાલ ભૈરવ છે, ડોગ હોય, જો પગ પાસે ડોગ છે. ઉજ્જૈનમાં કાલ ભૈરવનું ટેમ્પલ છે. બરાબર. પેલી અપ્સરા છે, ખૂણામાં વિષ્ણુ છે, પેલા સાધુ મહાત્મા છે, વચ્ચે વિષ્ણુ છે, પેલી 20 કન્યા એના હાથમાં સાપ છે. આવો તો ગાઈડ નહીં લેના ભैया. इस स्टेप वेल में तकरीबन 500 प्रिंसिपल स्कल्पचर है और तकरीबन 1000 माइनर स्कल्पचर है. द स्टेप वेल इज डिजाइन एज एन अंडरग्राउंड श्राइन और एन इन्वर्टेड टेम्पल. इसीलिए काफ़ी हिंदू देवी देवताओं के स्कल्पचर अंदर शामिल है, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, कुबेर, महेश, शिवा, सूर्या, इंद्र, ब्रह्मा, सावित्री, उमा महेश्वर और लक्ष्मी नारायण जी के साथ फैमिली भी है यहाँ. विष्णु भगवान के काफ़ी स्वरूप है यहाँ, ऑलमोस्ट ऑल. देवियों में लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सरस्वती जी, चामुंडा और दुर्गा माता के स्वरूप के स्कल्पचर यहाँ है. काफ़ी सारी अप्सराएं हैं यहाँ, नाग कन्या भी है यहाँ. ये सब जानने समझने के लिए हमें गाइड करना पड़ेगा, जो तकरीबन 400 रुपीज़ पर ग्रुप लेते हैं चार्जेस यहाँ. ये ब्रैकेट देखिए, पिलर देखिए कार्विंग वाला, होलो कार्विंग है, सुपर्ब. ये मॉन्यूमेंट में सैंडस्टोन यूज़ किया गया है, इसीलिए वेदर इफेक्ट काफ़ी जल्दी हो जाता है. इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो काफ़ी पोर्शन विजिटर के लिए बंद है. ओनली 30% पोर्शन इज़ अलाउड टू विजिट, बाकी का प्रोटेक्टेड है. अच्छा दोस्तों सुनिए, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिए, क्योंकि अब आने वाली है ऑसम अरुणाचल की सीरीज़. नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा. तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. Ornament bracket, cantilever effect.
इस स्टेपवेल की डेप्थ तकरीबन 27 मीटर है, जो 7 फ्लोर में डिवाइड की गई है। ये सब नक्काशी काम सोलंकी वंश और उनके वास्तुकला के चमत्कार के समय में हमें ले जाते हैं। ये मॉन्यूमेंट 700 साल तक जमीन में दबा रहा, उसके बाद ढूंढ के उनको रिस्टोर करना बहुत बड़ी बात है। एएसआई के लिए गर्व की बात है। ऐसा लगता है उस दौर में ये खाली वाटर मैनेजमेंट के लिए नहीं बनाई होगी, लेकिन सोशल गैदरिंग और रिलीजियस गैदरिंग भी यहाँ होता होगा। बीम्स एंड कॉलम कॉन्सेप्ट 212 पिलर्स है इस स्टेपवेल में टोटली। अद्वितीय नक्काशी काम, शिल्पकला और वास्तुकला का संगम। पटोला साड़ी का डिज़ाइन कॉन्सेप्ट शायद यही है। पटोला डिज़ाइन Entrance of this stepwell is east side and well is west side. It is Nanda type stepwell. Nanda. The measurement of the stepwell is 65 meter length and 20 meter width. View from the other side, well side. वेल का पिक्चर तो नहीं ले सकते, विजिट भी नहीं कर सकते, लेकिन रेफरेंस से ये पिक्चर लिया गया है। 33 फीट डायमीटर है वेल का और डेप्थ शायद 98 फीट है। रानी की वाव से 500 मीटर्स आगे एक दूसरा मॉन्यूमेंट है, लेकिन वो रूइन स्टेट में है। सहस्त्रलिंग तालाब, जो वाटर मैनेजमेंट के लिए सरस्वती नदी से किनारे पे बनाया गया था, लेकिन अभी वो बहुत ही खराब अवस्था में है, रूइन स्टेट में है, लेकिन वहाँ विजिट कर सकते, थोड़ी ही दूर पे है। उससे हम रिटर्न होंगे तो बीच में ये पटोला मेकिंग कैसे बनता है वो वहाँ मुलाकात कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बहुत पुरानी पीढ़ी है, रॉ मटेरियल है ये।
इस साड़ी की कीमत तकरीबन 1.2 लाख से 2 लाख 1.2 लाख ऐसा मुझे बताया गया। और शायद 1 या 2 महीने में एक ही साड़ी बनती है ऐसा भी बताया गया। उस जमाने के अणहिल पटाका यानी कि आज के पाटन के राजा सिद्धराज जयसिंह, जिनका स्टेच्यू पाटन में स्थित है, दशहरा की वजह से कुछ लोग उनको गार्लैंडिंग करके गए थे, हम भी चले गए। बहुत बढ़िया स्टेच्यू है, खूबसूरत है। इसके साथ खत्म होती है हमारी गुजरात टूरिज्म की सफ़र। अगले एपिसोड में मिलेंगे अमेजिंग अरुणाचल में। जब तक प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय, सी यू।